Hello everyone, welcome back to my channel Learn with RK. Hope you all are doing great and learning new things. In this video, we are going to understand about water. Like we will understand composition of water, distribution of Earth's water, state of water and changes in state of water. So before we start, don't forget to like, share and subscribe my channel. So let's start with our video. Water is an essential compound that covers more than 70% of Earth's surface. वाटर एक बहुत ही essential compound है जो कि कवर करता है अर्थ का 70% पार्ट. It is found everywhere around us, like in ponds, lakes, rivers, seas, clouds, soil and even inside body of living organism. अब वाटर जो है हमें सब जगह पे मिल जाता है हमारे आसपास, जैसे कि पोन्ड्स में होता है, लेक्स में, रिवर्स में, सीज में, इवन इनसाइड जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर भी. ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन वाटर टू सस्टेन देयर लाइफ. जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब डिपेंडेंट हैं वाटर के ऊपर उनकी लाइफ की प्रोसेस के लिए. एज इट गेट इन्वॉल्व इन वेरियस साइकोलॉजिकल रिएक्शंस, क्योंकि हमारे बहुत से डेली रूटीन के काम होते हैं जो हम वाटर की हेल्प से करते हैं. देयरफॉर इट कैन बी कंसीडर्ड एज इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक नीड ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये बेसिक और इम्पॉर्टेंट नीड है लाइफ की अर्थ में. विदाउट फूड वी कैन सर्वाइव फॉर फ्यू डेज, but without water we can't survive even for 1 to 3 days properly. अब वाटर कवर करता है अर्थ का 70% सरफेस. So because of higher amount of water in earth, it is known as blue planet. Water is used for so many activities in day-to-day life. Activities such as we use water for drinking, cooking, extinguishing fire, washing clothes, bathing and many more activities are there where water is required. Now let's see composition of water, means how water is formed. So water is a simple compound having 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen that are bonded together. वाटर क्या है? एक सिंपल कंपाउंड है जिसमें 2 एटम्स तो होते हैं हाइड्रोजन के एंड 1 एटम होता है ऑक्सीजन का, और ये दोनों मिलके जो हैं वाटर को बनाते हैं. डिस्पाइट ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, वाटर हैज़ रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ्स वाटर. 70% of Earth's surface is covered by water. This may cause you to ask, if there is so much water on earth, why people are concerned about protecting it? Right? So 70% या more than 70% जो है अर्थ का सरफेस वो वाटर से कवर है. जब हमारे पास हमारी अर्थ में इतना सारा पानी है तो हमें इसको प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? This is because 97% of total available water is salt water. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी अर्थ पे जो 90% वाटर अवेलेबल है वो सॉल्टी वाटर है. दिस इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो कि हम ह्यूमंस के लिए, हमारे पीने के लिए या हमारी जो भी रूटीन वर्क है उसके लिए जो कि फिट नहीं है. अप्रॉक्सीमेटली 2.8 to 3% is fresh potable water. मीन्स हमारे पास कितना पोर्टेबल, फ्रेश या फिर वो वाटर जिसको हम ड्रिंकिंग के लिए या अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं वो कितना है? 2.8 to 3%. Out of that, approximately 77 to 85% is locked in ice sheets and glaciers. उनमें से भी अब ये जो 2-3% जो वाटर है, पोर्टेबल वाटर है, उसका भी 77
या फिर 80% जो है वो कहाँ पर है, ग्लेशियर्स में, आइस फॉर्म में है, मीन्स विच इज़ ऑल्सो नॉट ready to use. We can't use that water directly. The remaining tiny portion of the earth's water is located in lakes and river and underground. अब जो remaining portion बच गया water का वो कहाँ है, lakes पे, rivers पे और underground water पे, जिसे हम use कर सकते हैं. Further, 17.2% of this remaining water is groundwater और उसमें से भी 17.2% वाटर जो है वो क्या है, ग्राउंड वाटर है. Now in composition of water, we saw that the water is one of the few substances that exist on earth in all the three stages of matter, which is also known as states of water. So now let's understand states of water. States of water is solid, liquid and gases. Now let's understand these three states of water in nature. Ice, snow and hail are the solid forms of water. These forms are found in high mountains, polar region and glaciers. So ice, snow और जो hail है वो क्या है, solid form है water की, और ये हमें कहाँ मिलती है, high mountains पे, polar region पे and glaciers पे. Next आता है liquid. So water itself is in liquid form. Water जो है liquid form में ही होता है. It is found in rivers, lake, oceans and other water bodies on the surface of earth. Now as gas. So water vapor is gaseous form of the water. अब जब हम water को गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, भाप निकलती है, water vapor कहते हैं उन्हें, right? So it is the gaseous form of water. तो जो water vapors होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, water की form, जो किसमें है, gas में. It is found in atmosphere. Water can change its state from one to another by heating or cooling. अब वाटर जो है अपने स्टेट को चेंज कर सकता है उसको हीट या कूल करने के बाद. मीन्स वाटर जो है सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से गैस में जा सकता है, गैस से वापस लिक्विड में आ सकता है एंड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है. So now let's understand how water is changing its state. Water अपनी state heat या फिर cool करने पे change करता है. So let's see how it change its state while we are heating the water. If ice, which is the solid form of water, is heated, it changes to water liquid. जब हम आइस जो कि सॉलिड फॉर्म है वाटर की उसे हीट करते हैं तो ये अपनी स्टेट सॉलिड से किस में चेंज कर लेता है, लिक्विड में. दिस चेंज इज़ कॉल्ड मेल्टिंग. इस चेंज को हम कहते हैं मेल्टिंग, पिघलना. वाटर लिक्विड कैन चेंज टू वाटर वेपर्स, गैस. अब वाटर लिक्विड को हम वाटर वेपर्स में जो कि है गैस की फॉर्म वाटर की, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन हीटिंग. सो जब वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन. दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इफ़ वाटर लिक्विड इज़ हीटेड अंटिल इट बॉइल्स, और जब तक हम वाटर को हीट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाने तक, सो इट चेंजेस टू वाटर वेपर्स. तब वो पानी जो है वो किस में चेंज होता है, वाटर वेपर्स में, जिसे हम कहते हैं गैस. वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट में आता है वाटर तो उसमें क्या है, बहुत जल्दी वेपर बनना शुरू हो जाते हैं. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. नेक्स्ट वी सी ऑन कूलिंग हाउ वाटर चेंजेस इट्स स्टेट इन कूलिंग. इफ वाटर वेपर क्या है, गैस फॉर्म है वाटर की, इज़ कूल्ड. अगर हम वाटर वेपर को कूल करते हैं, इट चेंजेस टू वाटर लिक्विड, तो ये किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में.
दिस चेंज इज़ कॉल्ड कंडेंसिंग। जब हम वाटर वेपोर्स को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करके उन्हें कूल डाउन करते हैं और उस वाटर को लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसिंग, कंडेंस करना। इफ़ वाटर लिक्विड इज़ कूल्ड इट चेंजेस टू आइस। और अगर हम वाटर जो लिक्विड हमें वेपोर से मिला है उसे हम कूल डाउन करते हैं तो वो अपनी कौन सी स्टेट में चला जाता है, चेंज करता है स्टेट को सॉलिड स्टेट में, जो कि है आइस। इट चेंजेस, दिस चेंज इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। जब लिक्विड से वाटर जो है आइस की स्टेट में जाता है उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। एंड वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज हाउ वाटर चेंजेस इट्स स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, and again gas to liquid and liquid to solid. So that's all with this video lecture, where we saw the composition of water, distribution of Earth's water, states of water and changes of state of water. In next videos we will see the another topic related to water, like water cycle and sources of water. So till that time, stay home, stay safe. Thank you for watching the video. Take care of yourself.